नमस्कार साथियों, आप जुड़ गए हो बीबीआई न्यूज के साथ। और जैसे कि आपको पता ही होगा, पंजाब के अंदर है जो पंचायती चुनाव है वो शुरू हो गए हैं और जल्द 15 तारीख को है जो इलेक्शन होने हैं। और उससे पहले हम टोहाना के साथ लगते गांव मनियाना के अंदर पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं एक बार यहाँ पर दिखाऊंगा, हम इस समय स्टेडियम के अंदर मौजूद है। अगर आप ऐसा स्टेडियम देखोगे, इससे एक टोहाना के अंदर एक स्टेडियम है जहां पर दूर दूर से है जो प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। और उसी तर्ज पर एक स्टेडियम गांव मनियाना के अंदर भी बना है। आप चारों तरफ अगर आप देखोगे, ऐसा स्टेडियम शायद मनियाना के आसपास काफी गांव के अंदर है, इस तरह का स्टेडियम देखने को नहीं मिलेगा। और कितने गांव के यूथ हैं जो यहाँ पर प्रैक्टिस करने आते हैं और उस प्रैक्टिस के बाद वो अलग अलग फील्ड के अंदर है वो सिलेक्ट भी हुए हैं। वो सारी बातें हैं हम सरपंच जो पूर्व सरपंच थे उनसे बात करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, चुनावी दौर है और एक दो दिन बाकी रह गया है। बिल्कुल। हम बात करेंगे विकास की। जो आप सरपंच रहे उस दौरान हमने स्टेडियम देखा, यहाँ पर बहुत बढ़िया बना हुआ है। तो ये जो स्टेडियम बनाने की सोच थी वो कैसे आपके दिमाग में आई? देखो, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਲੜਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਰੈਕ ਬਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਦੌੜਾਕ ਬਣਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਬਣਨ ਤੇ ਆਪਦੀ ਜੋ ਵੀ ਜੌਬਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਗਿਣਾਵਾਂ, ਅਣਗਿਣਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ। ਪਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਸੀਂ 2 ਪਾਰਕ ਬਣਾਏ, ਲੇਡੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ, ਜੈਂਟਸਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ। ਗਰੀਨਰੀ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ 3 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਾਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਜੰਗਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 29 ਤੋਂ 30 ਅਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਲੌਕ ਕੀਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ, ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ 50% ਹੈ। ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ 400 ਕਾਪੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਸੀਗੇ 200 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ 5 ਸਾਲ ਜੋ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ, ਰੈਗੂਲਰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮਾਂ ਲਈ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕਲਸਟਰ ਗੇਮਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜ਼ੋਨ ਗੇਮਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਾਇਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਈਡ ਮਿਰਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ ਮਿਰਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ਼ ਹੈ, ਵਿਦਾਊਟ ਵਾਇਰ, ਵਾਈਫਾਈ ਵਾਲੇ पूरे पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ कैमरे लगे हुए हैं, वाईफाई के साथ। हाँ जी, वाईफाई के साथ। और जो एक आपको पता है पेंशन एक गरीब आदमी के लिए
जो बुढ़ापा पेंशन है वो जी बहुत बड़ा सहारा होती है। जी मैंने मेरे कार्यकाल में अपने हाथ से साथ ले ले जाकर 150 से ज्यादा पेंशन मैंने साथ ले ले जाकर लगवाई, जी जिसमें बुढ़ापा पेंशन, विधवा, अंगहीन ये थी। 5-6 जो अंगहीन थे उनको ट्राई साइकिल वो मुहैया करवाई। जी जो परिवार में गरीबा जितना सरकार से मैं लेके आ सका, 5-6 मैंने जो कच्चे मकान थे वो डलवाए। गांव में पशु शेड, जो कि मेरे सरपंच बनने से पहले किसी को ये भी नहीं पता था कि सरपंच के हाथ में या सरपंच कोशिश करके ये काम भी कर सकता है, मैंने अगर जितना हम हो देखो उसका। पहले शायद गुरुसेफ जी ऐसे होता था भी एक कह सकते हैं अभी पुरानी उसको कथा लगा लो, जो हाँ भी सरपंची लेंगे और सरकारी पैसा हाँ, खाएंगे, ऐसा भी एक। बिल्कुल। वो था ना, वो उस पे गीत भी बने हुए हैं। जी चलो, हमने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं और जी ना ही सोच के इस फील्ड में आए थे। जी सेवा करने के लिए आज भी आए हैं और कल भी। जी तो खाने खुआने वाली बात है, परमात्मा ने बढ़िया ठीक दिया हुआ है, जी घर परिवार से ठीक है, जी जमीन जायदाद है और रोटी अच्छी मिलती रहे वो है। वैसे तो करोड़ों में भी नहीं रसता, अरबों में भी नहीं रसता। बिल्कुल। चलो, जो बात कर रहे थे काम की, गांव में 4 धर्मशाला अलग अलग कम्युनिटियों की, उनमें काम किया, उनको इंटरलॉक करवाया, शेड बनवाए, कम्युनिटी शेड, सेंटर का शेड लगवाया। रविदास मोहल्ले में धर्मशाला है, उसके पास एक खाली जगह थी जहाँ पे फालतू में कह लो वहां पे बैठे रहते सभी, इकट्ठे हो जाते मुंडे। जी ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾ ਕੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ करके प्रॉपर तरीके नाल, क्यों रविदास मंदिर भी है वहां पे और रविदास धर्मशाला भी है वहां पे, एक ऐसा सेट बनवाया जो उनके दुख सुख में आज बहुत अच्छे से काम आ रहा है। और बस स्टैंड की मैंने बताया आपको, एक मॉडर्न बस स्टैंड, जो मैं चंडीगढ़ साइड जाता तो मैं देखता कि ये बस स्टैंड ऐसा गांव में ही बनाएंगे। 2 बस स्टैंड मैंने तैयार करवाए मॉडर्न तरीके से, वो भी रखे। और जो शमशान घाट में शेड था, जो शमशान घाट का, वो खत्म हुआ था, वो नवा बनवाया। शमशान घाट में बैठने के लिए चौंतरियां, और जो ये चौंतरी वाला खेड़े पे जो भी सांझी जगह पे है कि बुजुर्गों को बैठने के लिए सत तैयार करने के लिए, जगह जगह पे वो छोटी छोटी करके सत्तें तैयार करवाई। वो हमने देखी, बहुत बढ़िया हाँ बनाई। जी, हाँ जी। तो ऐसे करके बोले तो गांव में विकास कार्य अनगिनत किए हैं। तो गुरुसेफ जैसे काम आपने इतने गिनवा दिए, लगभग अगर बात करें जो गांव के अंदर जरूरत होती है उस जरूरत से भी ज्यादा आपने यहाँ पर काम करवाए हैं। तो अब आपको क्या लगता है भी ये कमी और है गांव के अंदर, अगर यहाँ की जनता आपको दोबारा मौका देती है तो एक माइंड में होता है भी हाँ ये पिक्चर हो रहा है मेरे अंदर, इसको करके बस वो फारिग हो जाएंगे। देखो, बिल्कुल, जो काम करने वाला बंदा होता ना, जी उसके लिए काम कभी खत्म नहीं होंगे, जी हमेशा काम आते ही रहते हैं। गांव बड़ा होता जा रहा है, गांव के पास से आबादी है जो बढ़ती जा रही है, छोटी छोटी बस्तियां आती हैं, जी काम उनमें करने, उन बस्तियों में को पक्का करना, उनके पास पानी के प्रबंध करने हैं, उनकी जो गलियां नालियां हैं उनका निकासी का काम करवाना है, जी पीने वाले पानी का बड़ा काम है वो करवाना है। गांव में एक बढ़िया बिल्डिंग बना के अच्छी लाइब्रेरी बनानी बाकी है। जी तो जो कहते हैं ये ट्रीटमेंट प्लांट का, एक जो निकासी करके ट्रीटमेंट प्लांट, वो लगाना बाकी है। काम शुरू किया था पर प्रबंधक लग जाने के कारण वो काम रुक गया, उसको भी पूरा करना है। तो गिनते रहिए, काम करने की इच्छा वाले इंसान के पास काम कर बहुत होते हैं, जी वो काम करने की इच्छा होनी चाहिए, काम कभी खत्म नहीं हो सकते, मेरा मानना ये है। जी। चुनाव निशान क्या है आपका? चुनाव निशान जो मुझे अब मिला है वो बाल्टी है। जी तो मैं उम्मीद करता हूँ गांव वालों से कि वो मेरा साथ दे के बाल्टी को भरने का काम आगे बढ़ करेंगे। जाएंगे वोट डाल डाल हाँ के। जी, बाल्टी भरने का काम करेंगे और बस से वोट पाके मुझे कामयाब बनाएंगे और दोबारा से गांव की सेवा करने का मौका देंगे।
धन्यवाद। आप लोगों ने सुना पूर्व सरपंच है गुरुसेव जी, जिन्होंने तकरीबन अगर जो काम की जरूर मूलभूत सुविधाएं होती हैं गांव के अंदर, वो तकरीबन काम है जो ये गांव के अंदर करवा चुके हैं। और भी जो काम रह गए हैं इस प्लान के, अगर इस प्लान में अगर आप लोग इनका साथ देते हैं, चुनाव चिन्ह जो इनका बाल्टी का निशान है उनको वोटों के साथ भरते हो, तो आने वाले समय के अंदर ये गांव को, क्योंकि बाहर पड़े हुए हैं, सब कुछ इन्होंने देखा हुआ है भी क्या क्या जरूरत होती है जो लोगों को चाहिए, तो वो अगर उस विकास की तरफ जाना चाहते हो, उस विकास को चंडीगढ़ वाला विकास इस मनियाना गांव के अंदर लेके आना चाहते हो, तो इनका चुनाव चिन्ह बाल्टी है, उसको दबाकर बटन है जो उसकी लाइन लगा दीजिए दबा दबा कर, और फिर